Good morning, student. Today, here I start with a new lesson, that is lesson number 8, British Policies and Administration in India after 1858. You have learned in chapter 3 how the heroes of the first freedom struggle led their lives and gave a severe jolt to British rule by showing their might and determination to shake the foundation of the British. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था 1857 का, उसमें हमारे यहाँ के हीरोज़ ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ. दो ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द स्ट्रगल ऑफ 1857. स्ट्रगल तो खत्म हो गया, बट दिस स्ट्रगल वॉज अ वार्निंग बेल फॉर ब्रिटिश government. A new phase began in Indian history. The British government was under pressure and so they decided to make important changes in administrative sector. अब वो प्रेशर में आ चुके थे और अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नए चेंजेस लाएंगे. द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. अब जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो कैसा बताया है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिफाइड बाय द रिसाइनमेंट एंड रिवॉल्ट्स अगेंस्ट the British during first freedom struggle squarely blamed East India Company. The British held the administrative and economic policies of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. जो पॉलिसीज पुरानी थी जिसके कारण 1857 स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो सारी पॉलिसीज को चेंज किया उन्होंने. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India. इस तरह से कंपनी रूल जो था हमारे इंडिया में खत्म हो गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से प्रेशर आने लगा. नाउ द एक्ट ऑफ 1858. Implementing the changes in administrative policies, the British government passed a charter act. एक चार्टर एक्ट पास किया था 1858 में, नॉन एज एक्ट ऑफ 1858. In this act, the following points were incorporated in the ordinance. First, the act put an end to the rule of East India Company in India. इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे इंडिया में ओवर हो जाएगा. The control of the administration of India was transferred to the Queen of England. जितना भी कंट्रोल है वो किसके हैंड्स में चला गया? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के. The Viceroy was made representative of Queen in India. A post of the Secretary of India and his council was constituted in England for control of administration in India. सेक्रेटरी के पोस्ट को काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट कर दी. The Secretary of India was entrusted with the task of administrative setup. इंडिया के सेक्रेटरी को टास्क दिया गया कि वो यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करे. This was the Act of 1858. Now, Proclamation of Queen means Queen's Proclamation. The last Governor General of East India Company, Lord Canning, was appointed the first Viceroy of India. Lord Canning को first Viceroy हमारे इंडिया का बनाया गया. The Queen of England issued a proclamation which was read out by Governor General Canning at the bar in Allahabad. द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेन. अब इस प्रोक्लेमेशन जो क्वीन द्वारा था वो क्या बताना है? एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. इस प्रोक्लेमेशन में यही बताया है कि कोई भी न्यू स्टेट स्टार्ट नहीं किया जाएगा. इट ऑल्सो प्रॉमिस टू पे ड्यू रिस्पेक्ट टू एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. जस्टिस विल बी इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. जस्टिस जो भी है इक्वालिटी, बेनोवेलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस की इस पर रहेगी. It promised not to disclaim the rights of Indian princes and their rights would be protected. Indian princes और उनके rights को protect किया जाएगा. There will be no discrimination on the basis of caste and religion to enter the administrative services. It promised to take measures for moral and material progress of Indian and the British will be treated as equal. ये जो हमारा proclamation of Queen of England था was welcomed in India and the educated class in India lauded the proclamation, but it was a hoax. In fact, British government did not take up any welfare measures for Indians. बहुत सारे हमारे इंडियंस के फेवर में उन्होंने प्रोक्लेमेशंस तो दिए थे, बट वो हमारे वेलफेयर के लिए बाद में साबित ना हुए. The interest of England was above the Indian interest for the administration for the British government in India. The British control over Indian administration. By this time, British Empire had also started expanding in other parts of the world. In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interest in the other parts of the world. Indian resources were used to bear the cost of British wars against other nations. So the administrative system of India was under complete control of the British.
अब जो हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से कंट्रोल में था। मतलब हमारे यहाँ का रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे और जितना भी हमारे यहाँ का रिसोर्सेज था वो उसको किसी भी अदर नेशन के वार के समय यूज किया जाता था। इंडियन सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें, अंडर द 1858 द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। इंडिया सेक्रेटरी की पोस्ट को बनाया गया एंड ही वाज गिवन ऑल द राइट अफेयर्स ऑफ इंडिया। ही यूज्ड टू मैनेज इंडियन अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड वाज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। वो सारे ही हमारे इंडियन अफेयर्स को मैनेज करके देन वो सारे किसको रिपोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को। A 15-member council was formed to assist him. This office was known as Indian Secretariat in England. इसे इंडियन सेक्रेटरीट के नाम से कहा गया इंग्लैंड में. It was also called India Office भी कहा है. It had various departments. The salaries and other expenses of this office were borne by the taxpayers of India. मतलब हमारे इंडियन के जितने भी टैक्स पेयर्स थे उनकी उससे ही उनकी सैलरी बनती थी. Next topic, Government of India, Viceroy and his councils. As per changes made in Indian government under 1858 Act, now the Governor General became the Viceroy. 1858 में जैसे चेंजेस आए थे तो गवर्नर जनरल जो था वाइसरॉय बन गया एंड वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च. मोनार्च मीन्स राजा को भी कहा जाता है ये राज्य के लिए. तो वाइसरॉय वॉज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया. अ 4-member काउंसिल वॉज मेड टू असिस्ट वाइसरॉय एंड वॉज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. 4 मेंबर के काउंसिल बनाई गई, उसे वाइसरॉय कहा गया. बाय एन एक्ट पास इन 1861 एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर्स. जैसे 1861 का एक्ट पास हुआ तो इसमें एडिशन हो गया, 6 से 12 मेंबर्स हो गए. वॉज मेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. लेटर नंबर ऑफ मेंबर्स वॉज इंक्रीज. उसके बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हुए. द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल काउंसिल. इसमें प्रोविंशियल काउंसिल को बताया गया. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अदर प्रोविंसेस आफ्टर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. The Legislative Council was responsible for provincial administration, but before enacting any law, prior permission from Governor General was a must. The Governor was the highest authority of the province. The 1865 Act also increased the financial authority of Governor General. He had the power to limit or change the boundaries of provinces and legislative councils. 1865 Acts में भी यह हो कि फाइनेंशियल अथॉरिटी गवर्नर जनरल की बढ़ा दी गई और लिमिट्स जो भी थी वो भी इंक्रीज कर दी गई. In 1869, the Governor General was given power to enact law for Indian living abroad. किनको पावर्स दी गई जो इंडियन लिविंग अब्रॉड में थे. 1876 में रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास हुआ विच डिक्लेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज द क्वीन ऑफ इंडिया. इंग्लैंड की क्वीन को क्वीन ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया अप्रैल 28, 1876 में. In 1892, the Indian Councils Act was passed and additional 16 member was appointed in council. 16 members को भी अपॉइंट किया गया. Later in 1909, 1919, 1935, Indian government ordinance was passed to increase the number of members of the Legislative Council, yet the sole power was vested with the Viceroy. Now the next topic, reorganization of army. अभी तो वाइसरॉय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके काउंसिल्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया. अब यहाँ की आर्मी को वापस से कैसे रीऑर्गेनाइज किया. The role of Indian soldiers in the revolt of 1857 shook the foundation of the British rule in India. The British government made conscious effort to reorganize the army to prevent the recurrence of similar struggle. The Indian army was reorganized and strengthened so that they could help expand imperial power. Following changes were made. British government द्वारा कुछ changes किए गए थे आर्मी के लिए and this changes was the European army of East India Company was made a part of Indian British army. जो भी यूरोपियन आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अब वो इंडियन ब्रिटिश आर्मी के उसमें इंक्लूड हुई. Arrangements were made to send the English army officials and soldiers regularly to India. जितने भी इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स थे वो और सोल्जर्स थे वो इंडिया में भेजने लगे. नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर कट एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज. हमारे इंडियन सोल्जर्स को कम करते गए और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज करते गए. नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स इन बंगाल वॉज 2:1. अगर हम बंगाल की बात करें तो 2:1 थी एंड 3:1 इन बॉम्बे एंड मद्रास. अपॉइंटमेंट्स वर मेड ऑन रेशियल ग्राउंड्स. हमारे रेशियल्स मतलब कलर्स की बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होने लगे हमारी कास्ट के बेसिस पे. एंड एटमॉस्फेयर रीजनलिज्म वाज क्रिएटेड इन द आर्मी बाय रेजिंग पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊं, सिख, राजपूत एंड मराठास रेजिमेंट so that they could not have similar view on national issue. About 30% income of central and provincial government was being spent on army. Chief aim behind the reorganization of the army was the English policy of divide and rule. उनका जो मेन एम था वही डिवाइड एंड रूल था. डिवाइड करो और उसके ऊपर रूल करो. इफ वन कंपनी रिवॉल्टेड द अदर कुड क्रश द रिवॉल्ट. दे स्टार्टेड सेंडिंग इंडियन सोल्जर्स टू फॉरेन.
अगर कोई एक कंपनी उसका विरोध करती थी देन दे स्टार्टेड इंडियन सोल्जर्स टू फॉरेन, और इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको फॉरेन भेज दिया जाता था. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की अगर हम बात करें, आफ्टर 1858 vital changes were made in administrative organization. The 1861 Act opened a new process of division in administration. Legislative councils were formed in provinces. Legislative councils were set up in Bengal and Bombay 1862, Uttar Pradesh 1886, West Bengal 1894 and Assam in 1905. With 1919 Ordinance, the dual rule policy was introduced, and by the Ordinance of 1935, provincial supremacy came into force. The provincial government were given rights to control land revenue, toll tax, government stamp duty, law and order. Later, some more changes were introduced. इसी तरह से इसमें आगे changes होते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया हर नए ईयर्स में और हर नए सिटीज में. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग ऑफ द मेन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इज स्टिल प्रिविलेंट विद साइलेंट चेंजेस. आफ्टर 1861 नेसेसिटी ऑफ जिला परिषद एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर फेल्ड. 1861 के बाद में जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज की जरूरत पड़ने लगी. सो म्यूनिसिपैलिटीज वर एस्टैब्लिश इन मद्रास इन 1865 एंड पंजाब इन 1867 एंड उत्तर प्रदेश इन 1868. After that, municipal ordinance was passed to levy local taxes to meet the expenditure on local administration and works. Then उसके बाद म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, जिसके कारण जितने भी लोकल टैक्सेस होते थे वो हमारे यहाँ के जितने भी एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए वो टैक्सेस लगाने लगे. दिस हेल्प टू इंक्रीज द इनकम ऑफ म्यूनिसिपलिटी. इस तरह से म्यूनिसिपलिटी की इनकम इंक्रीज करने लगी. एंड ऑन द अदर election process got a boost. Lord Ripon did most important works in local administration in India, so he is called the father of local administration. उन्होंने हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे वर्क किए थे, इसलिए उनको उसका फादर बता दिया गया है. एन ऑर्डिनेंस वॉज पास इन 1881-82 टू ब्रिंग चेंजेस इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज. ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. इवन अ कॉमन मैन कुड vie फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूनिसिपल हैंड, बट mostly capitalists or well-to-do were elected. After 1882, district boards were set up in villages, and in 1900 and the Reorganization Commission focused on the growth of panchayats and district boards. With the 1935 Act, their jurisdiction expanded. 1935 में jurisdiction expansion हुआ. Under the local administration, each municipality, district board और village panchayat had to bear the responsibility of lighting. अब इनके पास कुछ ड्यूटीज भी आ गए एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइटिंग की, वाटर सप्लाई, रोड ट्रांसपोर्ट, सैनिटाइजेशन. बट द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल डिनाइड द रियल बेनिफिट्स ऑफ दिस रिफॉर्म्स टू इंडियन पीपल. बट वो इंडियन पीपल को ये सारे बेनिफिट्स नहीं देते थे. इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रिस्ट्रक्चर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858. दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. उनका मेन यही था कि वो हमारे यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करें. द ब्रिटिश गवर्नमेंट एबॉलिश द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड अलाउड फ्री ट्रेड इन इंडिया. उन्होंने इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसका एबॉलिश किया एंड पूरी तरह से फ्री ट्रेड करने लगे हमारे इंडिया से. दे लर्ड लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज टू इंडिया एंड दिस हैज अ डिजास्टर इफेक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री. और हमारी इंडियन इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने लगी. The Indian industries were the victim of this policy. The financial policy of British government was to protect and fulfill the interest of England. उनका मेन यही था कि वो हमारे अपनी इंग्लैंड के लिए सब कुछ करे और उनकी सारी पॉलिसीज के लिए प्रोटेक्ट करे. न्यू पॉलिसी की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द इनकम वॉज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इंडियन फार्मर वर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरी में इंडियन फार्मर को डिवाइड किया. एक तो लैंड रिवेन्यू पेयर था एंड टेनेंट्स बाय अडॉप्टिंग पॉलिसी और लैंड टैक्स एंड टेनेंट क्लासेस वर क्रिएटेड. दिस पॉलिसी वॉज अ बून फॉर द मनी लैंडर एज दे prospered at the pitiful condition of villagers and laborers whose lives become more miserable day by day. इस तरह से जितने भी विलेजर्स और लेबरर्स थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी होने लगी. द लेबर्स वर्क फॉर हार्स फॉर लिटिल अमाउंट. बहुत घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता तो बहुत थोड़े से अमाउंट के लिए. एट द सेम टाइम चाइल्ड लेबर वॉज ऑल्सो प्रोमोटेड. चाइल्ड लेबर भी प्रमोट होने लगा विच वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन. द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्प्लीटली हल्टेड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो पूरी तरह से हमारे इंडिया प्रोग्रेस के लिए हल्टेड थी, यानी डेंजरस थी. सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज हैड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन.
द ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट थ्रू सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट। अब जितने भी सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था वो हाई गवर्नमेंट पोस्ट होती थी। दो द इंडियंस वर अलाउड टू अपीयर इन सिविल सर्विस एग्जाम्स इन 1853, हमारे इंडियंस को 1853 में अलाउ किया कि वो सिविल सर्विस एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। बट दे कुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज द एग्जामिनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन इंग्लैंड। हमारे इंडियंस इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं ले सके क्योंकि एग्जाम्स जो होती थी वो इंग्लैंड होती थी, हमारे इंडियंस वहाँ पे नहीं जा सकते थे। एंड द मीडियम इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज थी वो भी इंग्लिश थी जो कि हमारे इंडियंस को समझ नहीं आती थी। द एज फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन वॉज 23 ईयर्स इन 1853, और इसमें अपेयर होने की एज थी 23। इट वॉज रिड्यूस टू 21 इन 1860, जब 1860 में इसकी एज रिड्यूस कर दी गई, एंड 19 इन 1876, और 19 ईयर्स कर दी गई 1876 में। दिस मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज। अब ये इंडियन के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया कि सिविल सर्विस में वो अपीयर करें। ओनली द यूरोपियंस हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, सिर्फ यूरोपियंस ही थे जो इसमें अपीयर होते थे। लेटर अंडर द प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ इंडियंस, हमारे इंडियंस के प्रेशर्स के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन रेज द एज, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज बढ़ा दी। जो एज लिमिट थी वो 24 ईयर्स कर दी गई 1906 फॉर सिविल सर्विसेज के लिए। However, the Indians who availed this competition were mostly from upper class or well-wishers of British government. बट फिर भी ये एग्जाम्स किसके लिए रही? अपर क्लास के लिए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेल विशर्स थे या उनके अंडर में काम करते थे। द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। द 1883 एल्बर्ट बिल इज एन इंस्टेंस दैट एंडेड द डिफरेंस बिटवीन द इंडियंस एंड इंग्लिश जजेस। इंडियंस और इंग्लिश जजेस के बीच में जो डिफरेंस हुआ करता था वो उन्होंने खत्म कर दिया। विद दिस ऑर्डिनेंस इन फोर्स एनी इंडियन जज कुड हियर अ केस अगेंस्ट यूरोपियन इन हिज जुरिसडिक्शन, बट द बिल हैड टू बी विड्रॉन इन द फेस ऑफ फियरी अपोजिशन बाय द यूरोपियंस। अब इसमें इंडियन जज भी इंग्लैंड के या यूरोपियन के किसी के भी खिलाफ जो भी जुरिसडिक्शन मतलब जो भी मतलब जजमेंट था वो दे सकता था। अब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज जो लाई गई 1858 में उसके बारे में बताया गया है। इन द बिगिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू मेक द इंडियंस मेंटल स्लेव। पहले शुरुआती उनका ये था कि हम यहाँ के जितने भी इंडियंस हैं उनको दिमागी रूप से अपना गुलाम बना के रखेंगे। द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वॉज इनिशियलाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। द मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया बाय 1820। मिशनरीज हमारे यहाँ पे 1820 में स्टार्ट हुई एंड स्टार्टेड इम्पार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन। उन्होंने यहाँ पे आते से इंग्लिश एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। दे प्रीच क्रिश्चियनिटी अलॉन्ग विद द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडियंस। अब जो इंडियंस को एजुकेशन देते थे वो इंग्लिश में, उसमें वो अपनी क्रिश्चियनिटी भी सिखाने लगे। द 1854 वुड प्रपोजल है सजेस्टेड टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन साइमल्टेनियसली विद द एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। अब उनका ये था कि अगर वो इंग्लिश एजुकेशन दे रहे हैं तो वो इंडियन लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। देयर वर ऑल्सो प्रपोजल टू ट्रेन द टीचर्स। अब उनका प्रपोजल ये था कि वो टीचर्स को भी ट्रेन करें। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सेकुलर बेसिस प्रपोजल वॉज mooted टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब उनके प्रपोजल में ये भी था कि वो फाइनेंशियल ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स भी देंगे। इन 1882 लॉर्ड रिपन कॉन्स्टिट्यूटेड हंटर कमीशन, एक हंटर कमीशन लेके आए जिस टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। मतलब जो वुड्स ने प्रपोजल दिया था उसको वो आगे फॉरवर्ड करे। This laid emphasis on primary education, physical and mental education were given priority. In 1904, University Act was passed to affiliate the university and to appoint professor as per needs of students. Professors को भी अपॉइंट करने लगे यूनिवर्सिटी में और उसमें जितनी जरूरत होती है स्टूडेंट्स के हिसाब से प्रोफेसर को अपॉइंट किया जाता था। The 1919 Act entrusted the responsibility of education department of provincial councils under the Sargent Plan in 1944. इस प्लान के अकॉर्डिंग एजुकेशन वॉज मेड फ्री एंड कंपल्सरी। हर एक चाइल्ड के लिए फ्री और कंपल्सरी कर दी जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स थी। इनिशियली द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी माइट हैव नॉट बीन बेनिफिशियल टू इंडियंस बट इट प्लेड मेजर रोल इन मोटिवेटिंग इंडियंस टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस। अब इंडियन प्रिंसेस के ब्रिटिश पॉलिसीज क्या थी? इन 1858 देयर वर 562 states ruled by Indian rulers. The Queen's Proclamation had promised not to extend British territories in India and to respect the rights and dignity and honor of Indian princes, but it proved mere proclamation. क्वींस प्रोक्लेमेशन में बताया था कि उनके राइट्स और उनकी रिस्पेक्ट बराबर मेंटेन रहेगी, पर यह सिर्फ एक प्रोक्लेमेशन में बन के रह गया है, इसे लागू नहीं किया गया। इन 1874 द किंग ऑफ बड़ौदा मल्हार राव
गायकवाड़ वॉज dethroned, उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया, रिप्लेस बाय हिज डिसेंडेंट। इन 1876 में क्वीन विक्टोरिया जो थी एज्यूम द टाइटल ऑफ द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, उसे इंडिया की इम्प्रेस बना दी गया, एंड शी वॉज द सोल अथॉरिटी ऑफ इंडियन अफेयर्स, उनके पास राइट्स भी दे दिए गए इंडियन अफेयर्स के लिए। With the emergence of the British government as per the paramount authority in India, the power and status of the Indian princes were further reduced. जो उनकी पावर्स थी वो भी रिड्यूस कर दी गई। Now it was the responsibility of the British government in India to protect the Indian states from internal as well as external threats. अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वो उनको हर तरह से इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे, बाहर से भी और अंदर से भी। दिस गेव अनलिमिटेड पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंटरवेन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतनी पावर हो गई थी कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरवेन करने लगे। द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन इवन बैन द फॉरेन ट्रेवल बाय इंडियन प्रिंसेस विदाउट हिज परमिशन। लॉर्ड कर्जन ने एक और फरमान निकाल दिया जिसमें यह था कि इंडियन प्रिंसेस जो थे बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते फॉरेन कंट्रीज में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स द नंबर ऑफ ट्रूप्स को भी फिक्स कर दिया गया कि वो हमारे यहाँ के स्टेट के लिए कितनी रहेगी, दैट द इंडियन स्टेट्स कुड मेंटेन, एंड द ट्रूप्स वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, वो सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास रहेगी। इन 1947 में माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, प्रोवाइडेड चॉइस टू इंडियन प्रिंसेस टू लिव आइदर अंडर इंडिया और पाकिस्तान। अब उन्होंने ये बोला था या तो इंडिया में रहो या पाकिस्तान में रहो। इनफैक्ट आफ्टर 1857 के बाद में द ब्रिटिश हैड परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया, विच डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 2 कैटेगरीज, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड। 2 कैटेगरी में हमारे इंडिया को डिवाइड कर दिया था, या तो एक्सप्लॉइटर होते रहो, मतलब या तो आप किसी का शोषण करो या किसी के द्वारा शोषित होते रहो। द रिलीजियस बाइगोट्री, कम्युनिज्म एंड कास्टिज्म वर द इक्वेशंस इन द कंट्री। द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर कम्प्लीटली प्लंडर्ड, पूरी तरह से हमारे यहाँ के रिसोर्सेज खाली कर दिया। नाउ द नीड वॉज टू रीऑर्गेनाइज, अब हमारे यहाँ पे जरूरत थी रीऑर्गेनाइज करने की, रीस्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड द प्रोसेस बिगेन विद द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। और ये अचीवमेंट कब मिली हमारी कंट्री को? 15 अगस्त 1947 को। दिस वॉज द लेसन एंड PDF विल बी सेंड टू यू।